Good morning, everyone. Hello, people who are online, my voice is audible. Mujib, Pooja, Pushpa, Rahul. Is my voice audible? Vikas. Okay, thank you for responding, Mujib. Great. So we will be, I can see that few of you are new to the session and some of you were there with me in the previous session as well, right? So people who were there in the previous session with me, no, the people who are new in the sessions, can you please raise your hand once so that I understand? People who are new to the session, can you please raise your hand? Okay. Okay. Thank you for raising the hand, guys. Thank you so much. Okay, fine. You can put that down. Thank you. Great. So what we are going to do is we are going to first revise whatever we have covered till date, and then I'll be helping you out with the installation part. And we will be talking about, if the time permits after that, we will be discussing about installation, what are the data types in Java. बट उसके लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा दैट हाउ एक्टिवली यू आर रिस्पॉन्डिंग इन द क्लास. ठीक है, मुझे ये देखना है कि आपको समझ भी आया जो भी हमने पहले किया है या मिस आउट हो गया है, क्या रहा है. Okay, so I am just sharing. I have few questions. Okay, give me 1 second. Okay, I'll be writing some questions on the screen for the people who are new. Probably आपको आंसर नहीं आएगा, but हम लोग उसे डिस्कस करेंगे. But जो लोग पहले थे मेरे साथ, you just have to raise your hand or you can just unmute and answer. Okay, so let's see how much you remember everything. Okay, I'm sharing my screen. Just give me a second. Yes, I hope my screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Great. Perfect. Okay, I'm repeating this again. Okay, I'm repeating this again that the people who have joined today for the first time, probably आपको शायद आंसर आता होगा, शायद नहीं आता होगा, that is completely fine. बट इन केस आपने मेरे पहले सेशंस अटेंड किए हैं तो शायद आपको ये आंसर्स आएंगे. ठीक है, सो जस्ट लेट मी नो व्हाट इज दैट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट टॉपिक. ओके, सो कैन यू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफाइन जावा, हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन जावा. We have already studied that. Can we revise that once again? And can you please tell me what is define Java? Yes, Mujib, you are trying to say something. Ma'am, Java is an object-oriented high-level interpreted language. Very good, perfect. So Java is object oriented, right? Interpreted high level language. Okay. Now, next question. Very good. That is appreciated. Um, the next question that I have is, what is object oriented programming language? Or I can say OOPS language. ये कौन से वाले होती है? So what is OOPS language or object oriented programming language? Anyone besides Mujib? What is OOPS language? हमने ये पढ़ा था ना. अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको आता होगा, कुछ तो आइडिया होगा उसके बारे में. इट्स ओके अगर गलत आंसर भी दोगे तो आई एम कंप्लीटली फाइन विद इट. पूजा, राहुल, व्हाट इज एन OOPS लैंग्वेज? विश्वजीत, आयुष, शंकर Yeah, जी, ma'am. Basically, please. OOPS are using class and objects. Okay, only classes and objects.
four types: encapsulation, polymorphism, inheritance. Right. So something which is based on classes and objects, sorry, classes and objects, right? And something which is having all the four pillars of OOPS. Like, what are the four pillars of OOPS? Or four types of concepts that are there in OOPS? Viswajit? Inheritance, polymorphism, Inheritance, encapsulation, and polymorphism, abstraction. abstraction, and encapsulation. Okay. There was some overlap. Okay. Pooja bolo. Pooja Bure. Inheritance, Very good. polymorphism, Very good. encapsulation, and abstraction. Very good. Perfect. ठीक है गुड नाउ इसमें मैंने एक और क्वेश्चन ऐड किया था उस दिन दैट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ oops लैंग्वेजेस मतलब कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो मैंने आपको ये रिसर्च करने के लिए बोला था राइट मैंने बोला था कि कौन से oops लैंग्वेजेस हैं बिसाइड्स जावा ठीक है कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो oops पे बेसिस पे चलती हैं तो एनी आइडिया किसी ने भी रीड किया उसको ऑनलाइन Okay, people who have joined new, don't get scared. Shankar, I know this is your first day. I can see some other people also. There is someone with the name of N. Can you please rename yourself? There is someone with the name of N. Please rename yourself. Yes, Vikas, Utkarsh. कौन सी लैंग्वेजेस में oops यूज होता है क्या सिर्फ जावा में ही oops है या कहीं और भी आपने देखा है oops यस मुझे बोलिए ना प्लीज मैम C++. जावा, पाइथन, C++, जावास्क्रिप्ट. जावा ठीक है पाइथन ओके गुड सी प्लस प्लस जावा, जावास्क्रिप्ट. ओके जावास्क्रिप्ट ओके एनी अदर लैंग्वेजेस ये तो मैंने ही बता दी थी उस दिन बातों बातों में और कौन सी लैंग्वेजेस है जिसमें यूज होता है पूजा पूरा यू वर ट्राइंग टू आंसर समथिंग C language. सी लैंग्वेज में ऊप्स कंसेप्ट नहीं होते हैं सी इज अ बेसिक लॉजिक बिल्डिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें ऊप्स कंसेप्ट नहीं होते राइट सी प्लस प्लस में ऊप्स कंसेप्ट होते हैं इसीलिए उसका नाम सी प्लस प्लस है कि सी से थोड़ा सा बड़ा है वो कुछ अलग है उसमें सी से राइट इट इज अ पेरेंट ऑफ सी यू कैन से लाइक सी इज द पेरेंट एंड उसके ऊपर से सी प्लस प्लस इज द एडवांस वर्जन ऑफ सी यू कैन से लाइक दैट सो नहीं सी इज नॉट द राइट आंसर राहुल आप कुछ ट्राई करना चाहेंगे यस यस जो भी हैंड रेज कर रहा था आई कुड नॉट सी हु इट वाज बट यस sorry can you please say that C sharp. yes perfect C sharp को हम ऐसे भी बोलते हैं एंड C sharp भी बोलते हैं ठीक है सो either of the ways it was ठीक है और कौन सा someone was raising hand I guess but I could not see who it was so ठीक है चलो गुड अप्रिशिएट दैट एटलीस्ट आप लोगों ने इतने एफर्ट्स डाले यस मुजीब आप बोलना चाहते हैं कुछ मैम रूबी आल्सो. अच्छा ओके ठीक है ओके ठीक है सो नेक्स्ट इज व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज how would you describe a high level language what is a high level language okay for people who have joined new let me tell you that we have just studied the definition of java जहाँ पे हम बोलते हैं कि java is an object oriented interpreted and a high level programming language ठीक है इसमें और भी फीचर्स होते हैं जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे सो वी आर जस्ट रिवाइजिंग वॉट एवर वी हैव डन इन द प्रीवियस सेशन एंड दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन आंसर सेशन ओके सो उसी में एक टॉपिक था हाई लेवल एंड लो लेवल क्या होता है सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाई लेवल राइट नाउ ठीक है सो हाई लेवल क्या होता है यस मुझे बोलिए
Ma'am, high level language is easily understood by human being. ओके, वेरी गुड। विश्वजीत, आपको कुछ बोलना है? मैम सेम आंसर था, जो यूजर फ्रेंडली होता है एंड इजी टू अंडरस्टैंड होता है। यस, हाई लेवल लैंग्वेज उसे कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज is easily understood by programmers or you can say humans। ठीक है, अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं? हाई लेवल मतलब कौन सी होती है? जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देख रहे हो, ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आप बात करते हैं, वो सारी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग कि हाई लेवल होती है? बिकॉज when we say high level, so high level is human understandable format में होती है। ठीक है, इट इज इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, मतलब ऐसी होती है जो ह्यूमन बींग्स को समझ पड़े। तो फिर हाई लेवल का ऑपोजिट क्या होगा? सो देर इज समथिंग नोन एज लो लेवल। नाउ व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज? विच इज अंडरस्टूड बाय द मशीन अंडरस्टैंड जो Yes. बोलते जाओ विश्वजीत। हाँ मैम, जो लैंग्वेज मशीन अंडरस्टैंडेबल है न्यूमेरिक वो उसको लो लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं। न्यूमेरिक नहीं बोल सकते आप उसे। सॉरी, न्यूमेरिक नहीं, जो मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगा एंड मशीन अंडरस्टैंडेबल रहेगा। हाँ, जो सो लो लेवल लैंग्वेज इट इज मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब ये वाली लैंग्वेज कब होती है हाई लेवल? हाई लेवल लैंग्वेज तब होती है जब कोई ह्यूमन बीइंग कोई भी कोड लिखता है, चाहे आप सी लिखिए, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी शार्प, कुछ भी आप ले रहे हो। ठीक है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पीएचपी भी बात कर लो, तो पीएचपी भी जो होती है उसको, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज हाई लेवल लैंग्वेज। व्हाई? बिकॉज दैट इज इजीली अंडरस्टूड बाय द ह्यूमन बीइंग्स। व्हाट अबाउट लो लेवल लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जहां पर जब प्रोग्राम कंपाइल होता है, सो इट गेट्स कन्वर्टेड टू अ मशीन फॉर्मेट। ठीक है, मशीन लैंग्वेज फॉर्मेट बोल सकते हैं आप उसे एक बाइट कोड कह सकते हैं, आप उसे क्लास फाइल कह सकते हैं। सो वो फाइल्स अगर आप ओपन करके देखेंगे ना, तो वो आप रीड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट इज इन मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो हमने लिखी है, द कोड दैट वी एज अ ह्यूमन बीइंग राइट, दैट इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा अगर इंटरव्यू में कि भाई फिर लो लेवल क्या होती है, तो दैट इज मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। हाउ डू यू गेट लो लेवल लैंग्वेज? तो दैट इज व्हेन वी कंपाइल अ कोड। ओके, जब भी आप कोड को कंपाइल करते हो, तो जो फाइल क्रिएट होती है उसे हम लोग बोलते हैं लो लेवल। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? यस यस, मैम। नो? शंकर, आपको समझ में आ रहा है? I think he is new. Shankar, yes. People who are new, how many of this is the first day for the batch? Besides Shankar? You can raise your hand. There is an option to raise hand. पूजा, आप कुछ बोल रहे थे? Okay, this is your first day. Good, very good. फिर भी आप बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हो. Appreciate that. Okay, +1. Okay. हाँ शंकर, वो तो मुझे समझ में आया, आपका फर्स्ट डे आज, कोई बात नहीं। आपको समझ में आ रहा है शंकर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं? गिव मी yes or no in the chat box. समझ में आ रहा है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं? यू कैन गो अनम्यूट एंड स्पीक, इट इज ओके। पूजा, आपको समझ में आ रहा है हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं? Guys, am I audible properly? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, okay, fine. ठीक है, चल लेट्स गो अहेड। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस। यहाँ पे हमने हाई लेवल वर्ड भी देखा था, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी वर्ड देखा था, राइट? नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज इंटरप्रेटेड। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? और हम ऐसा बोलते हैं that Java is an interpreted language. Now, why do we say that? Because
जब हम बोलते हैं जावा इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, दैट मीन्स वी आर सेइंग दैट वो ऐसा एक लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेटेड है, विच इज यूजिंग कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ। ठीक है, वो एक ऐसा लैंग्वेज है विच इज यूजिंग कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ। ऐसे कुछ और भी लैंग्वेजेस हैं जो कि कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों चीजें यूज करते हैं, सी, सी प्लस प्लस, ठीक है, आपका जो सी शार्प है, आपका जो पाइथन है, ये सब ऐसे है जो सी आपका कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों चीजें यूज करता है। ओके, समझ में आया? समझ में आया? यस, नो? Yes, गाइस, आई ma'am. नीड रिस्पॉन्सेस। ओके, सो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब क्या होता है? वन इज विच इज यूजिंग कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ। नाउ व्हाट इज अ कंपाइलर? कंपाइलर को आप कैसे डिफाइन करोगे? यस मुझे। Compiler is something that read the whole code at once and convert it into machine understandable language. Very good, very good. You can say that as a low level language, converts the high level code to a low level code. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In low level language. ओके, वेरी गुड। बट अगर उसमें एरर आएगी तो क्या करेगा वो? फिर भी कंपाइल करेगा क्या? नहीं मैम, फिर से और एक बार कोड रीड करेगा और जिधर एरर आ रहा है वो लोकेट कर देगा मैम। लोकेट करके आपको बताएगा कि इस लाइन पे आपको एक एरर है, राइट? यस सो मैम, दैट हमने इज हाउ अगर द एरर करेक्ट कर दिया तो फिर से कोड और एक बार रीड करेगा वंस, फिर और राइट। इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर वेरी देगा। गुड, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, राइट। ठीक है, शुभम, एनी डाउट्स? शुभम, पूजा, आकाश, उत्कर्ष? No. No, ma'am. There is someone with Pooja Patil as well. Ravina, Bishwajit, Rahul. We have two Rahuls as well. Rahul Dingra is also there. Sorry, Dingria. Okay, sorry, pardon me for that. Okay, so I hope there is no doubt with what is compiler doing. Okay, then what is the work of an interpreter? Compiler का काम कैसा होता है? Compiler compiles the entire code. Compiler compiles the entire code and converts it to low level. लो लेवल आप बोल सकते हैं या आप मशीन कोड बोल सकते हैं, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ऐसा भी बोल सकते हैं उसे, ठीक है। बट इसमें एक स्पेशल बात ऐड करना भूलना मत, एट वन गो, एक ही बार में वो पूरा स्कैन करता है, ठीक है, और फिर उसे कन्वर्ट करता है। आप कंपाइल्स द एंटायर हाई लेवल कोड बोल सकते हो यहाँ पे। हाई लेवल कोड मैंने अभी बताया था कौन से होते हैं। High level is which one? Which is easily understood by the programmers or the human beings, right? और आप लो लेवल की अगर बात करते हैं तो लो लेवल कौन सा होता है? जो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होता है उसे हम लो लेवल कहते हैं, राइट? नाउ देन देयर इज वन मोर क्वेश्चन इन दिस, दैट व्हाट इज एन इंटरप्रेटर? व्हाट इज एन इंटरप्रेटर? Interpreter interprets the. ओके, एक Hello. मिनट, रवीना, हम एक मिनट शुभम को चांस देते हैं बिकॉज ही स्टार्टेड फर्स्ट, सॉरी फॉर दैट। Okay. Interpreter interprets the code line by line and give us the output, or we can say generate the code output. ओके, गुड, वेरी गुड। रवीना, आप क्या बोलना चाहते थे? Same answer. Interpreters read the code line by line in the generators. Just hold on, guys. Yes, sorry. हाँ जी, बोलिए। Ravina, that is a perfect answer. So interpreter is something which is scanning the code line by line and generating required output, right? Suitable output जो भी आपको चाहिए उससे वो मिल जाता है. So interpreter interprets the code line by line and generates
suitable output, right? Any confusion? Interpreter interprets. Interpret करना मतलब कि आपको कन्वर्ट करके देता है ना, आउटपुट जो भी आपको चाहिए उसके हिसाब से वो आपको मशीन कोड से आउटपुट में कन्वर्ट करके देता है। ओके, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर एक और चीज थी, दैट इज फीचर्स ऑफ जावा, जो हमने पढ़े थे उस दिन, राइट? सो व्हाट आर फीचर्स ऑफ जावा दैट वी हैव स्टडीड? What are the features of Java? Any one that you remember, that is okay. कुछ भी एक चलेगा. You want, I It can is help you. simple, It is simple. secure, Okay. robust, Okay. um, Yes, मुझे बोलिए. Ma'am, it is platform independent language Okay. and less memory consumption Very good. and garbage collection also, ma'am. ठीक है. And So it manages the pointers internally, ma'am. okay. Good. Good. And it Good. does Very not good. and it does not support multi-inheritance. It does not support multiple inheritance. Okay. Good. Yes, ma'am. ठीक है. सो अभी क्या हुआ है ना, रवीना ने पॉइंट्स बोले हैं और मुजीब ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो मैं थोड़ा सा उसे अलाइन करती हूँ. वी से दैट जावा इज अ सिंपल लैंग्वेज, राइट? इसको हम सिंपल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है. ठीक है, इसके अंदर आप बोलेंगे तो पॉइंटर्स का जो कंफ्यूजन आपको नॉर्मली C++ में रहता था वो यहाँ पे नहीं रहता है. बट यस, द पॉइंटर्स आर समथिंग, पॉइंटर्स आर मैनेज्ड इंटरनली, तो आपको नहीं करना पड़ता है उसे मैनेज. ठीक है, वो इंटरनली होती है. प्लस उसी के वजह से हम ऐसा भी बोलते हैं दैट बिकॉज द पॉइंटर्स आर हिडन इनसाइड, तो वो सिक्योर्ड भी है. ठीक है. दूसरा चीज हम इसके अंदर ये बोल सकते हैं दैट इट इज, और क्या था इसमें, इसका अच्छा गार्बेज कलेक्शन है. ठीक है. एंड ऑल्सो इसके अलावा और क्या बोला था हमने इसके बारे में? Less memory consumption. लेस मेमोरी कंजम्पशन. एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड. तो वो जो कंफ्यूजन होता है ना, जो हमारा कंफ्यूजन था कि भाई इसको कैसे करेंगे, ये दो में से एक जैसी मेथड्स इनहेरिट हो गए हैं, नाउ व्हाट टू डू. ठीक है, वो कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म हो गया आपका, बिकॉज अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस है ही नहीं. ठीक है, सो वो आपको कुछ उसका टेंशन ही नहीं. तो मैम क्या फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस हम कर ही नहीं सकते? नहीं, देयर इज अ रिप्लेसमेंट इन दैट विच इज नोन एज इंटरफेस. ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ना एब्स्ट्रैक्शन, तब हम इंटरफेस के बारे में उसमें पढ़ेंगे. ठीक है, जब हम जावा में एब्स्ट्रैक्शन के बारे में डिटेल जाएंगे तब हम पढ़ेंगे व्हाट आर इंटरफेस. सो इंटरफेस इज पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हियर. ठीक है. चलो, नेक्स्ट पॉइंट आपने बोला दैट इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. सो व्हाई डू वी से इट एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? Why do we say it as platform independent? मुझे कोई और आंसर चाहिए. मुझे आपके अलावा, रवीना के अलावा मुझे कोई और चाहिए जो आंसर दे. सॉरी, मैं आपसे वापस आऊंगी आपके पास, बट मुझे कोई और आंसर चाहिए. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. यस विश्वजीत, बोलिए. It can run on any machine or any platform. यस, एंड प्लेटफॉर्म के बेसिस पे अगर आप बोलते हो तो आप किसको प्लेटफॉर्म बोल रहे हो? As in, प्लेटफॉर्म किसको बोल रहे हैं आप यहाँ पर? ऑपरेटिंग सिस्टम को, राइट? तो yes, आप ma'am. इसको ये Like बोलते हो. yeah, Windows or anything. वेरी गुड, बोलते जाओ बोलते जाओ. Yeah, Windows, Ubuntu, Linux, or like or Mac. मैक. ठीक है, सो आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे से एग्जीक्यूट करवा सकते हो. इसे हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म. ठीक है,
इट इज, इसीलिए हम इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के अलावा पोर्टेबल भी कहते हैं। अब पोर्टेबल बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि जब आप इसके अंदर कोई भी कोड को कंपाइल करते हो तो जो आपकी कंपाइल्ड फाइल है ना, वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जाके फिर एग्जीक्यूट कर सकते हो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप वहां पे जाके अपना कोड चेंज करो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी मैं विंडोज पे कोई कोड बना रही हूँ, प्रोग्राम बना रही हूँ, फिर उसको मैं कहीं पे शिफ्ट करती हूँ, है ना, तो मुझे वहां पे जाके, अगर विंडोज से मैं मैक ओएस पे चली गई तो मुझे वहां पे जाके चेंज करना पड़ेगा अपना कोड। बट जावा इज समथिंग जहाँ पे आपको वो कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ओके। एंड ऑल्सो इट इज पोर्टेबल। तो पोर्टेबल मतलब यू कैन शिफ्ट योर कोड एनीवेयर, ठीक है। यू कैन ट्रांसफर और यू कैन एग्जीक्यूट योर कोड ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है। एनी प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैक ओएस, विंडोज एंड लिनक्स हियर, ओके, ठीक है। एक और चीज मैंने बताई थी, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल का मतलब क्या था? दिस इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का भाई है, ठीक है। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल अगर हम बोलते हैं तो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि आपको हार्डवेयर अगर आपका चेंज हो जाता है ना, ठीक है, एक पीसी से दूसरे पीसी में या किसी और में आपने ट्रांसफर किया तो हार्डवेयर आपका चेंज हो गया, देखो। बट अगर आपका हार्डवेयर चेंज हो जाता है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसको, वो मैनेज कर लेता है उस चीज को, ठीक है। एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर? एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर? इसका एक और फीचर बोल सकते हैं आप, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैम आपने तो डेफिनेशन में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोला था, हाँ, बट वो डेफिनेशन था, हम अभी फीचर्स की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ जावा, ठीक है। तो हम उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये। तो मतलब कि इट सपोर्ट्स द फीचर्स ऑफ oops concept, है ना। It supports the features of oops concept due to which the development, or you can say the development becomes easier, ठीक है। So this is one of the things, राइट। अच्छा, जो लोग न्यू ज्वाइन हुए, हम लोग ये सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। आपको इसमें कहीं पर भी कुछ डाउट आता है, आप प्लीज मुझे रोक के पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको अभी किसी के सामने नहीं पूछना, आपको लगता है नहीं मैम पूरा सेशन खत्म होने के बाद मैं आपसे बात करूंगा, दैट इज ऑल्सो फाइन विद मी, आई डोंट माइंड, ठीक है। सो यू कैन आस्क 10 questions, आई एम ओके, बिकॉज क्योंकि सबको वो चीज आती है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग वॉट एवर वी हैव डन फॉर द पास्ट 2 days, ठीक है। सो डोंट वरी, वो भी डेमो ही था, सो आपको अभी तक हमने सिलेबस टच नहीं किया। दिस आर द बेसिक क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में आपको फर्स्ट डे पे पूछे जाएंगे। बीइंग अ फ्रेशर ये क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा है देन प्लीज डोंट हेजिटेट। आपने पहले अटेंड भी कर लिया है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आई डोंट माइंड, यू कैन आस्क मी 10 times, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। सो डोंट हेजिटेट, ओके। Let's talk about robust. Now, what do you understand by robust? अभी इसमें 2-3 चीजें रिपीट हो जाती है, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट आ जाता है इसका, ठीक है। सो दैट इज सेम पॉइंट हियर। दूसरा, इसका गार्बेज कलेक्शन बहुत अच्छा है, तो ये बहुत फास्ट हो जाता है, उसके वजह से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। गार्बेज कलेक्शन मतलब क्या होता है? व्हेन वी से गार्बेज कलेक्शन, दैट मीन्स द वेरिएबल्स वर डिक्लेयर्ड, ठीक है, they were used in the program, the objects were created, they were used in the program, but due to some reason now the objects are not required, या उन वेरिएबल्स की अब जरूरत नहीं है हमें प्रोग्राम में, ठीक है। तो क्या करेगा गार्बेज कलेक्शन? अपने आप उन ऑब्जेक्ट्स को फ्लश कर देगा। सो मेमोरी मैनेजमेंट इजी हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, वो जो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स थे, वेरिएबल्स थे, उसको फ्लश करवा दिया। सो अब हमारी मेमोरी फ्री हो गई है उतनी, राइट। सो इस तरीके से हम इससे ये बोल सकते हैं दैट इट इज रोबस्ट, क्योंकि इसकी मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। इसके अंदर गार्बेज कलेक्शन है, जो कि नॉर्मली हमको कभी कभी कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मैनुअली करवाना पड़ता है। गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? समथिंग विच इज यूजलेस, कुछ ऐसा चीज जिसकी आपको जरूरत नहीं है,
राइट? तो आप उसको वापस वापस क्यों उधर पड़े रहने दोगे? हम बोलते हैं ना कचरा है फालतू, हटा दो उसको। वैसे अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो आप उसे क्यों होल्ड करके रखेंगे ना? सो यू नीड टू फ्लश देम ऑफ। तो वो चीज आपको मैनुअली नहीं करना है, वो ये करके देता है। दूसरा चीज रोबस्ट में और भी मैंने कुछ चीजें बताई थी, क्या बताया था आपको? एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या था? Guys, are you able to see my screen, notepad wala, the where I am typing? Yes. Yes, Okay. Okay, thank you for responding. हाँ जी, बताइए एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? What is exception handling? What is exception handling? क्या हो गया? कुछ भी रैंडम आंसर दे सकते हो, आई डोंट माइंड। शंकर आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको कुछ भी आइडिया है उसके बारे में तो। रवीना बोल रहे थे आप कुछ। मैम ड्यूरिंग कंपाइलेशन अगर एरर आ जाए to handle Yes, those errors, very good, exception handling use होता है। very good, perfect, very good, very good. कोई और ट्राई करेगा? शुभम, आप ट्राई करना चाहोगे? During compilation or during generating the output, we can accept the error. So for that reason, uh, uh, to avoid the error, we can use the exception handling case. राइट, वेरी गुड। क्या होता है जब आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट, बीच में एक्सेप्शन आने की वजह से कोड एग्जीक्यूशन बीच में बंद हो जाता है। अब वो बंद हो जाने की वजह से क्या होता है, कोड में एरर कहीं पर इतनी ज्यादा नहीं थी, वो सिर्फ एक लाइन में कुछ एक एरर आ गई, या फाइल का नाम गलत लिख दिया आपने, या आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी करते वक्त पासवर्ड का शायद नाम गलत दे दिया, या डेटाबेस का नाम गलत दे दिया, कुछ तो भी गलती हो गई आपसे, या फिर यूजर से इनपुट लिया आपने, उसने कुछ गलत दे दिया आपको डेटा, राइट? कुछ भी ऐसा जब होता है, सो दैट इज नोन एज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन होने से क्या होता है कि आपका प्रोग्राम बीच में बंद होके बाहर निकल जाता है, एंड नाउ यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन इट। आप वापस अंदर नहीं जा सकते हो, आपको स्टार्टिंग से पूरा स्टार्ट करना पड़ता है फिर से, बिकॉज एक्सेप्शन फायर हो गई। ठीक है, सो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करता है, अब ऐसा कोई चीज होना हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉब्लम आई बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, यूजर ने कुछ इनपुट गलत दे दिया, तो वो आपके कंट्रोल में थोड़ी है एज अ प्रोग्रामर, वो तो यूजर के कंट्रोल में है, उसने गलत इनपुट दे दिया तो अब आप क्या कर सकते हो? बट उसने गलत इनपुट देने की वजह से हमारा प्रोग्राम बंद होके बाहर निकल गया, विच इज अ प्रॉब्लम नाउ, राइट? तो वो चीज अवॉइड करने के लिए कि ठीक है एरर तो आएगी, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो एक्सेप्शन तो फायर होगी, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट आपका प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए। ओके, उसको स्किप करके फिर वो आगे कम से कम चला जाए और हमको बोल दे कि भाई यहाँ पे इनपुट गलत आ गया था बट देयर वाज एन एक्सेप्शन विच वाज फायर्ड, बट ठीक है आगे चलते जाए कहानी। ओके, इट शुड नॉट स्टॉप इन बिटवीन, दैट इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। नाउ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है उनमें सब में इतना अच्छा एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होता जितना जावा में। सो जावा में कस्टमाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग भी है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्या होता है दैट योर कोड इज नॉट गोइंग टू स्टॉप इन बिटवीन बिकॉज ऑफ समवन एल्सेस एरर। आपने फाइल का नाम गलत दे दिया, बट वो बोल देगा कि फाइल का नाम यहाँ पे गलत था, शायद ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट वो बंद नहीं हो जाएगा। वो बहुत, यू कैन से दैट यू आर क्रैश नहीं हो रहा है आपका प्रोग्राम, आप उसे सॉफ्ट लैंड करवा रहे हो। सॉफ्ट लैंड करवाना मतलब बहुत सॉफ्टली उसे ना बोलना, इज्जत से मना करना, ठीक है? बहुत ऐसे रफली एकदम से बाहर नहीं निकाल दे आपको कोड, दैट इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो जावा हैज अ वेरी गुड एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। इसमें आप अपने खुद के कस्टमाइज एक्सेप्शंस भी बना सकते हो, जिसे हम कस्टम एक्सेप्शन क्रिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, सो वैसा भी होता है। सो देर इज वेरी डिफरेंट थिंग्स, मतलब ये इसका बहुत अच्छा है। दूसरा चीज हम इसमें मल्टी थ्रेडिंग भी करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग मतलब कि multiple threads are running simultaneously. Now this means what? Multiple threads मैं आपको अभी explain नहीं कर पाऊंगी, it is a very big concept, but yes हम इतना समझ लेते हैं कि आपका प्रोसेस जो है वो फास्टर हो जाता है because of multi threading.
ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं जिसके वजह से हम ये बोल सकते हैं दैट एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत अच्छा है, मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा है, गार्बेज कलेक्शन अच्छा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज अ रोबस्ट लैंग्वेज। रोबस्ट लैंग्वेज मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने उसमें। ठीक है, तीसरा चीज हम इसमें बोलेंगे दैट इट इज अ सिक्योर्ड लैंग्वेज। सिक्योर्ड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं हम लोग इसको? बिकॉज एक तो चीज है इसमें कि पॉइंटर्स आर मैनेज्ड इंटरनली, जिसके वजह से ये होता है कि आपका जो पहले क्या होता था, पॉइंटर्स अगर आप सी प्लस प्लस की बात करते हो तो एक्सटर्नली आप एक्सेस कर सकते हो। पॉइंटर्स मतलब क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर डेटा का एड्रेस आप एक्सेस कर रहे हो और आप डायरेक्टली उस डेटा को जाके कुछ भी कर सकते हो। आप उसे चुरा सकते हो, आज आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आपको चाहिए तो आप उसे चेंज कर दो उस डेटा को ही। और फिर बाद में यूजर सोचता रहे यार मैंने तो ये डाला ही नहीं था, ये क्या हो गया। तो जब हैक होता है तब ज्यादातर ये पॉइंटर्स होते हैं जहाँ पे से जो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट इसमें क्या होता है कि जो पॉइंटर्स है वो इंटरनली मैनेज होते हैं, तो बाहर से कोई उसे एक्सेस ही नहीं कर सकता है। बट क्या पॉइंटर्स नहीं होते हैं जावा में? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉइंटर्स आर देयर इन जावा बट दे आर मैनेज्ड इंटरनली। ओके, तो ये आपको एक बात ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा चीज हमने इसमें देखा था दैट इसके अंदर बहुत अच्छे से मिडलवेयर सर्विसेज है। सर्विसेज, ठीक है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ JAAS। अब ये जैस का मतलब होता है जावा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सर्विस। ये क्यों है? दिस इज फॉर प्रोवाइडिंग वेब सिक्योरिटी। मतलब जब आपकी वेब पे आपका ये चल रहा है तब इस पर्टिकुलर चीज, मिडलवेयर मतलब ये होती है कि बीच में रहती है आपके प्रोग्राम के और उसके नेटवर्क के बीच में। तो ये इट वर्क्स एज अ शील्ड फॉर यू। ठीक है, तो मिडलवेयर सर्विसेज है जो कि वेब सिक्योरिटी के लिए काम आती है। ओके, इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ने नहीं वाले हैं, बट अगर आपको रीड करना है आप रिसर्च कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें अब आ गई हैं। So Java is said to be one of the secured languages when it comes to networks, when it comes to big application, web application development। तो ये हम बोल सकते हैं कि it is a secured language। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी डाउट है किसी को भी? People who are online, I understand आपका फर्स्ट डे होगा, तो आपको फर्स्ट डे में भी कुछ डाउट है या आपने ऑलरेडी अटेंड कर लिया था बट स्टिल देयर इज अ डाउट? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? मुजीब, शंकर, उत्कर्ष, विकास, No. आकाश, रवीना, विश्वजीत, पूजा? No, no. No, ma'am. ओके, No. ओके, ओके, फाइन, ठीक है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, नाउ लेट्स गो टू इंस्टॉलेशन। आप में से कितने लोगों के जावा का इंस्टॉलेशन हो रखा है? काइंडली रेज योर हैंड। ओके, शुभम आपका हो गया। ठीक है, आपने पाथ सेट किया है पीछे? ओके, ग्रेट रवीना। और किसी का है जो इंस्टॉलेशन हो गया है? बाकी सबको मुझे गाइड करना है। आपने शुभम इंस्टॉल किया तो कौन सा जेडी के वर्जन कौन सा इंस्टॉल किया है? आई थिंक 17 है शायद से। कोई बात नहीं, वर्क्स फॉर मी। रवीना आपका कौन सा जेडी के? Check करना पड़ेगा, बहुत balance है, पता नहीं। आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्या बोल रहे हो आप? अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, देखना कैसे है, डोंट वरी, रिलैक्स। ठीक है, अभी देखो मैं आपके साथ मेरी पूरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई विल टेल यू हाउ टू डाउनलोड फर्स्ट दिस थिंग। एक मिनट दो मुझे। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको। ठीक है, अब देखो हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो यू गो टू गूगल एंड सर्च फॉर इंस्टॉल जावा ऑन विंडोज। ठीक है, विंडोज 11 करोगे तो भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, सब चलेगा। ठीक है, आप लोग स्टेप्स लिख सकते हो मेरे साथ साथ। ओके, एंड आप बाद में उसे कर सकते हो। एक मिनट,
ठीक है। सो पहले तो आपको गूगल क्रोम में जाना है एंड सर्च करना है इंस्टॉल जावा ऑन विंडोज। ठीक है, ये होने के बाद आपको पहला ऑप्शन मिलेगा ऐसा कुछ, ओरेकल क्लाउड का। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस नो? Yes. ओके, यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करिए। ठीक है, इट विल टेक यू टू दिस स्क्रीन। यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज ऐसा कुछ दिखेगा, है ना? ओके, ध्यान रखना आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं जावा डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, जावा डाउनलोड करने के लिए, बट इधर उधर कहीं नहीं जाओगे, ओरेकल पे ही आप जाएंगे। यहाँ पर आप जाइए, इधर से आप डाउनलोड कर लेंगे जावा डाउनलोड्स में जाके। ठीक है, या फिर आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो दिखेगा यहाँ पे। आई सजेस्ट दैट गो फॉर GDK 21। ओके, 17 कर रहे हो तो भी चलेगा, 21 करते हो तो भी चलता है। नाउ देयर इज समथिंग नोन एज LTS। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको गाइस? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, LTS करके एक होता है। व्हाट इज LTS? दैट इज लॉन्ग टर्म सपोर्ट। जब भी आप कोई भी वर्जन इंस्टॉल करेंगे, आप ध्यान रखेंगे इट शुड बी एन LTS वर्जन। What do you understand by LTS version? That is a long term support version. Now what does that mean? आपको पूछा जाएगा कितने टाइप के आपने LTS वर्जन आपको पता है कौन से हैं, या कुछ भी रिलेटेड टू दिस आपको पता होना चाहिए LTS क्या है। नाउ देयर आप अगर बात करेंगे तो जावा 25, जावा 21, जावा 17, 11, ये सब आपके LTS वर्जन हैं। इनको हम LTS क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर सर्टन वर्जन विच आर रनिंग गुड विद एनी एप्लीकेशंस दैट यू आर बिल्डिंग। उसका सपोर्ट अच्छा है, इट इज अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला एप्लीकेशन। ठीक है, उसके अलावा मैम क्या 21 के बाद 22, 23, 24 नहीं आया था? आया था, वो भी आया था, बट वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं था। 25 इज अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट विच इज हेल्पिंग यू डू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विच इज कंपैटिबल विद डिफरेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, सो यू विल ऑलवेज कीप इन माइंड दैट विल गो विद LTS। जो भी LTS है ना, उसको ही आप इंस्टॉल करेंगे। मैम 25 कर सकते हैं? हाँ आप कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी ना, जब हम स्प्रिंग बूट या हाइबरनेट पे जाएंगे, दैट इज द एडवांस जावा में जब हम जाएंगे ना, तब आपको इश्यू आएगी, क्योंकि वो शायद इससे साथ अभी कंपैटिबल नहीं होगा। सो मोस्टली वी विल गो आइदर विद 17 और 21। ठीक है, आई सजेस्ट आपके पास 17 है तो, आपके पास 17 है तो चलेगा। ठीक है, अगर 21 आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो भी चलता है। ओके, डोंट वरी। ओके, आप में से कितने लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया होगा, बट अगर नहीं किया है तो यू कैन गो विद 21 और यू कैन गो विद 17, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। ना नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, यहाँ पे आपको लिनक्स, मैक ओएस एंड विंडोज के लिए मिलेगा। मैं विंडोज यूज कर रही हूँ, इसीलिए मैं विंडोज का डाउनलोड करूंगी। आप मैक ओएस कर रहे हैं, आप लिनक्स कर रहे हैं, आप उस हिसाब से अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे। ओके, नाउ व्हेन वी गो विद विंडोज, मैं यहाँ पे x64 इंस्टॉलर वाला जो यहाँ पे लिखा है ना डाउनलोड करो, उसको डाउनलोड करूंगी। ठीक है, सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग। दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? यस और नो? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन यू कैन कीप डूइंग दिस विद मी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, सो जब तक हो रहा है तब तक हम रुक सकते हैं 2 मिनट। एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर? किसी को ऐसा चाहिए कि मैम एक स्टेप पीछे से बताओ क्या किया था? Any confusion still here? रवीना, शुभम, पूजा, आकाश? नो मैम, नो मैम। ओके, ठीक है, ये No, हमारा ma'am. डाउनलोड हो गया है। राइट, अब ये डाउनलोड होने के बाद हम इसके ऊपर चले जाते हैं। ये जो फोल्डर दिखा रहा है ना, इस फोल्डर पे जाते हैं एंड इट इज शोइंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये जो आपका है, आप इस पे चले जाइए, डबल क्लिक कीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, आपको आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। ये आपको पूछेगा कैन आई मेक चेंजेस, तो अलाउ इट टू मेक चेंजेस। ठीक है, जैसे आप उसे यस करेंगे वो इंस्टॉल होना शुरू होने लगेगा। ठीक है, विल वेट फॉर 2 मिनट्स।
ओके, अब ये दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? स्क्रीन पे एक विंडो जैसा कुछ दिख रहा है आपको? यस नो? ये छोटा सा विंडो दिख रहा है आपको सेटअप के लिए? उसके ऊपर जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जब आप जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे एक पाथ दिखता है, सी प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 21। ये जो पाथ है आपका, आपको चेंज करना है तो आपकी मर्जी है, बट आई सजेस्ट डोंट चेंज। ओके, डोंट चेंज द पाथ, नेक्स्ट पे चले जाइए यहाँ से एंड इसे इंस्टॉल होने दीजिए। ठीक है, ये हो जाने के बाद जस्ट इसको क्लोज कर दीजिए एंड अपने डॉक्यूमेंट्स में चले जाइए। यहाँ पे जाइए, सी ड्राइव में जाइए, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जाइए। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको जावा दिखेगा, ये हमने जो अभी अभी इंस्टॉल किया है, देखिए राइट, अभी किया है, इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे JDK 21 हमने इंस्टॉल किया है। सो जिसने भी इंस्टॉल नहीं किया था या पहले किया हुआ था, आपको यहाँ पे जाके आपके वर्जन दिख जाएगा। ठीक है, क्लिक कीजिए इसको। ये जो बिन वाला है ना फोल्डर, इसको हम लोग इधर हमने ओपन कर लिया है। अब इसको हम लोग एक बार कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी क्यों करना है? बिकॉज हमको पाथ सेट करना है, ठीक है, वरना हमारा कोड एग्जीक्यूट होने में थोड़ी सी मिसबिहेव करता है। We go back here. I'm showing you once again what to do. Go to your C drive, program files, Java, जो भी आपने इंस्टॉल किया JDK 21, उसके अंदर बिन में जाइए। ठीक है, और ये जो आपका पाथ है ना, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हमने क्यों कॉपी किया? अब आप जाइए अपने सर्च मेनू में एंड यहाँ पे सर्च कीजिए एनवायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे आप जाते हैं तब आपको एनवायरमेंट वेरिएबल्स करके एक ऑप्शन मिलता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैंने क्या किया, मैं सर्च बार में गई, यहाँ पे जाके मैंने एनवायरमेंट वेरिएबल्स सर्च किया। ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स कंट्रोल पैनल में होता है। यहाँ पे आप जाएंगे, एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको एक पाथ करके एक ऑप्शन मिलेगा नीचे में। एक मिनट है, जस्ट होगा। पाथ करके आपको ऑप्शन मिलेगा ना इधर नीचे में सिस्टम वेरिएबल्स में। ठीक है, उसको एडिट कीजिए। एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें दिखेगी ऑलरेडी, उसमें से कुछ भी आपको डिलीट नहीं करना है, ध्यान रखो। आई एम रिपीटिंग अगेन व्हाट आई डिड, आई एम गोइंग बैक लिटिल बिट। एनवायरमेंट वेरिएबल हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए हम एनवायरमेंट वेरिएबल क्लिक किया। यहाँ पे आपको पाथ दिखेगा, पाथ में जाइए, एडिट पे क्लिक कीजिए। एडिट में जाके जो अभी आपने कॉपी किया था ना, इस पे न्यू में जाइए, न्यू पे मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे अभी मुझे वो पेस्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, सी प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 21 बिन। ठीक है, इतना करने के बाद आप ओके कर दीजिए। राइट, इसको आप ओके कर दीजिए, इसको आप ओके कर दीजिए। ठीक है, एक बार वापस देखिए क्या किया मैंने। मैं इस पाथ को मैंने कॉपी किया हुआ था, यहाँ पे मैं गई, एनवायरमेंट वेरिएबल सर्च किया, एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल में गए, पाथ में गए, न्यू, सॉरी, इसमें गए, पाथ में एडिट पे गए। एडिट में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे इस चीज को पेस्ट कर दिया है। ठीक है, इसको ओके कीजिए, इसको ओके कीजिए, इसको ओके कीजिए एंड हो गया आपका काम। ठीक है, नाउ टू चेक व्हाट इज दैट वर्जन ऑफ JDK दैट यू हैव इंस्टॉल्ड, तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए अपनी सर्च बार में, CMD टाइप कीजिए, मतलब कि अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं जावा एंड डैश डैश वर्जन। ठीक है, इसे एंटर कीजिए। जो भी जावा का वर्जन आपके इसमें इंस्टॉल्ड होगा वो आपको दिख जाएगा। सो मेरे यहाँ पे अभी 21 मैंने आपके सामने इंस्टॉल किया है, तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एनी डाउट्स इन दिस? हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल?
Yes, sir. मैम Yes. मैंने सब सेम स्टेप आपका मतलब कॉपी करके मैं भी अभी इंस्टॉल किया, पर कमांड प्रॉम्प्ट पे मेरा 17 दिखा रहा है, जबकि मैंने 21 डाउनलोड किया था। ओके, आप एक बार अपना मुझे स्क्रीन शेयर कर सकते हो हाँ विश्वजीत? ओके मैम। शेयर योर ओके स्क्रीन मैम। प्लीज। हाँ, मैम शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा, ऑर्गेनाइजर प्रेजेंटर कैन शेयर आ रहा है। एक मिनट एक मिनट। एक मिनट। हाँ। हम्म। अब एक बार चेक करो विश्वजीत, चेक करो। बताएं मैम। यस, परफेक्ट। आपने 21 डाउनलोड किया था, राइट? Yes, एक मैम। बार मुझे आपके सी ड्राइव में जाइए। प्रोग्राम फाइल्स में जाइए। सर मैं ये किया था। हाँ हाँ, ठीक है मैम, जावा में जाइए, जावा में जाइए। जेडीके 17 आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पहले से विश्वजीत। ठीक है, और जाइए जेडीके 21 पे जाइए। नहीं नहीं, हाँ, हाँ इस पे जाइए, बिन पे जाइए। हाँ, अब ऊपर जो पाथ दिख रहा है ना, उसको एक बार कॉपी कीजिए। सर यस। मैम। अब एक बार एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जाइए। गुड, नीचे आइए। यहाँ पे देखिए, आपका जो जावा होम है ना, वो 17 सेट है। इसको एडिट कर दूँ? एडिट कर लो उसको एक बार। हाँ, इसके अंदर वो बिन हटा दो, बिन और स्लैश हटा दो। नहीं नहीं नहीं, हाँ बिन हटा दो और स्लैश भी हटा दो। ओके करो। ठीक है, अब एक बार पाथ में जाओ, एक बार ऊपर ऊपर पाथ, बेटा उसी में पाथ था। हाँ ओके। हाँ, नीचे आइए। देखिए पाथ दिख रहा है ना, न्यू मत करो, हाँ न्यू मैम, मत हाँ करो। मैम, ठीक। हाँ, एडिट करो इसको। एक मिनट रुको, इसके अंदर ना आपने सेट किया होगा 17 को। रुको, देखो सबसे ऊपर देखो, फर्स्ट, सबसे ये मैम फर्स्ट। जेडी के। हाँ मैम, इसको है डिलीट ना, कर दूँ? इसको रिमूव कर दो, और जो हमने अभी कॉपी किया था ना, वो एडिट करके पेस्ट कर दो। बाकी वो तो पेस्ट है ऑलरेडी, 21 यहाँ पे मैंने किया था। किया है ना, ठीक है, ओके करो इसको। ओके करो। परफेक्ट, ओके कर दो। अब एक बार मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में जाके वापस चेक करो। ऊपर का एरो की दबाओ, वापस टाइप मत करो। सब कुछ हटा दो, ऊपर का सिर्फ एरो की दबाओ। हाँ, एंटर करो। रीस्टार्ट करना पड़ेगा शायद, ओके मैम। क्योंकि वो 17 ही उठा रहा है बार बार, हमने तो सब कुछ हटा दिया उसका। या फिर आप 17 रहने दो विश्वजीत, अगर 17 आपके इसमें है ना तो चलेगा, बिकॉज आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी जो कि मुझे बाद में आने वाली है। विंडोज ये अपना स्प्रिंग बूट या कुछ करने के उस टाइम पे एरर्स आती है छोटी छोटी, वो 17 में नहीं आती है ज्यादातर। अगर तब हुआ प्रॉब्लम तो हम चेंज कर लेंगे, वरना 17 चलने दो, कोई टेंशन नहीं है। मैम स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू। एनीवन एल्स हैज अ प्रॉब्लम विद दिस? रवीना, आकाश, शुभम, पूजा, मुजीब, शंकर। शंकर आपने, मैम, बोलो 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 शुभम। हाँ मेरा आई थिंक मैंने 17 किया था डाउनलोड, लेकिन मैंने अभी चेक किया सीएमडी पे तो 19 दिखा रहा है। क्योंकि मैं जेडीबीसी ट्राई कर रहा था तो उस टाइम 19 किया होगा शायद मैंने। तो चेंज अच्छा, कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो आप, 17 इंस्टॉल कर सकते हो, 19 अनइंस्टॉल मार दो। ओके ओके मैम। ठीक है, 17 हाँ इंस्टॉल हाँ। दिखा सकते हो आप अपना, एक बार 17 भी इंस्टॉल्ड है क्या? हाँ, चेक नहीं किया मैंने, एक बार स्क्रीन शेयर कर दूँ क्या? दिखाओ दिखाओ। विश्वजीत, ट्राई करना कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही जेडीके इंस्टॉल्ड है आपके इसमें, वरना वो बहुत मिसबिहेव करता है बाद में। ठीक है, सो अगर 17 आप यूज कर रहे हो तो अभी 21 अनइंस्टॉल कर सकते हो विश्वजीत।
सी ड्राइव दिखाओ। मुझे आपका एक बार सी ड्राइव दिखाओ। शुभम आप म्यूट पे हो, अनम्यूट हो जाओ। ओके मैम, अभी आ रहा है मैम आवाज? हम्म। सी ड्राइव पे जाइए आपके, मुझे दिखाइए जावा आपने कौन सा इंस्टॉल किया है। प्रोग्राम फाइल्स, नहीं नहीं, इसमें बैक जाओ, एक और बैक जाओ। हाँ, प्रोग्राम ये फाइल्स में वाला। जाओ, जावा में जाओ। ऊपर 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 ऊपर, प्रोग्राम फाइल्स x86 नहीं, प्रोग्राम फाइल्स अच्छा, ये ऊपर वाला। वाला। नहीं बेटा, पीछे वाला। आपका है ना एक्चुअली स्क्रीन बहुत स्लो चल रहा है, तो आप स्लो स्लो करेंगे, मैं जो बोलती हूँ वही क्लिक करोगे, ठीक है शुभम? क्योंकि आप अच्छा क्लिक अच्छा, करके आगे ओके चले जा रहे हो और मुझे समझ नहीं आ रही आप कहाँ घूम रहे हो। ओके, हाँ, प्रोग्राम फाइल्स पे क्लिक ओके, करिए। यही वाला ना जो सिलेक्ट है? वही वाला, हाँ वही वाला। ओके, किया मैम। यस, जावा पे जाइए उसमें। ओके, जेडीके 19 है इसमें। हाँ, 17 नहीं है आपके इसमें इंस्टॉल, 19 है। सो 19 हम नहीं ओके यूज करते हैं, आइदर वी कैन गो विद 21 और वी कैन गो विद 17। तो आप 17 यूज करो, मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 21 करना है तो 21 करो, ठीक है? ओके 17 मैम। यूज करोगे तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? आप स्टॉप कर सकते हो, समझ में आया ना आपको क्या करना है? इसको अनइंस्टॉल करना शुभम, डिलीट मत करना, अनइंस्टॉल करना प्रॉपरली। अनइंस्टॉल कैसे करते? अब प्रोग्राम फाइल आपके ये जो सिस्टम क्या बोलते हैं, सेटिंग्स में जाके आप अनइंस्टॉल करेंगे। गो ऑनलाइन, रिसर्च हाउ टू अनइंस्टॉल एन एप्लीकेशन, ओके ओके। ठीक है? ऑनलाइन जाओ, सर्च करो, एंड फिर भी नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछना, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है? बट पहले एक बार खुद से रिसर्च करो कैसे होता है। ओके, ओके ओके मैम। डोंट वरी। हाँ, अभी किसी और को कुछ डाउट है? आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं। हाँ जी, आकाश आपका हो गया? आकाश चौरसिया। शंकर आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? शंकर, एनी डाउट्स? ओके गाइज, हम लोग ना नेक्स्ट सेशन जब भी हम मिलने वाले हैं तब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स, ठीक है? एंड वी विल, ओके, समझ में आ रहा है शंकर हम जो भी कर रहे हैं वो सब? आप इंस्टॉलेशन कर लेना शंकर, और आपको अभी तक हमने जितना भी किया उसमें डाउट आया? पूजा, शंकर, एनी डाउट्स? हेलो। हाँ मैम, यस, रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? सॉरी, रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल सकता है क्या? रिकॉर्डिंग लेक्चर? हेलो। आपकी आवाज कट रही है शंकर, वापस बोलो प्लीज। रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या इसका? आपको एक बार लेक्चर। चेक करना पड़ेगा आपके काउंसलर के साथ, हाँ ठीक है, मैं बात ठीक करता है? हूँ। शुभ, आपको इसमें कुछ डाउट है जो भी हमने अभी किया उसमें? पूरा समझ में आया। ओके, उसमें कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछो, बिकॉज जो भी रिकॉर्डिंग मिलेगी उसमें भी सेम चीज होगा, बस खाली ये होगा कि वो थोड़ा सा डिटेल में होगा, ठीक है? तो आप है ना, इसमें से अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको डाउट सॉल्व करवा दूंगी अभी की अभी। रिकॉर्डिंग देख के क्यों टाइम वेस्ट करोगे अपना? हाँ ठीक है। ठीक है, आपको कुछ भी जो ये टॉपिक हमने किया है ना इसमें से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा ना बीच में? हाँ ठीक है, तो उसमें से टॉपिक्स देखो, एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा है वापस मुझसे पूछो नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिल रहे हैं, ठीक है? कल या परसों जब भी हम मिल रहे हैं तब आप मुझसे वापस पूछ लो, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? सो डोंट वरी, इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? इंस्टॉलेशन हो गया आपका शंकर? अगर आपने इंस्टॉलेशन नहीं किया तो वो फिनिश कर लो, ठीक है?
पूजा आपका हो गया इंस्टॉलेशन फिनिश? हाँ मैम, मैं लीव कर सकता हूँ? हाँ हाँ शुभम, दैट्स ओके, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट सेशन का आपको है ना मैसेज आएगा, ठीक है? कल होने वाला है मोस्टली, बट अभी होली का छुट्टी की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपको मैसेज आ जाएगा। आकाश, विश्वजीत, पूजा, मुजीब, रवीना, शंकर, एनी कंफ्यूजन्स? नो मैम, मेरा अभी इंस्टॉल हो गया है, डन। थैंक यू मैम। वेरी गुड, ग्रेट। रवीना कुछ बोल रहे थे आप? मैम मैंने वर्जन चेक किया तो वो 23 आ रहा है। अच्छा ओके, एक बार स्क्रीन शेयर करके समझा सकते हो? एक काम करो, चेक करो, आपने चेक अच्छा, करो कौन सा वाला हाँ इंस्टॉल्ड है चेक आपका? किया हाँ, तो कौन सा जावा इंस्टॉल? वर्जन 23 आ रहा है ओके, जो एक काम इंस्टॉल कर है सकती हो, इससे। एक काम कर सकते हो, उसको अनइंस्टॉल करके 21 इंस्टॉल कर सकते हो, 21 ओके मैम। ठीक है? उसको अनइंस्टॉल करो, वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं है। उसके बाद का लॉन्ग टर्म सपोर्ट 25 है, बट 25 में ना बाद में कोड करने जाएंगे ना, जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब ग्लिच करेगा थोड़ा सा, ठीक है? सो वी विल नॉट गो विद 25 राइट नाउ। कंपनीज भी 25 नहीं यूज करती, कंपनी 17 यूज करती है, ठीक है? इफ पॉसिबल 17 कर सकती हो इंस्टॉल तो ग्रेट, फिर को कुछ पूछना ही नहीं है, ठीक है? ओके ओके हाँ 17 इंस्टॉल कर सकती हो तो बढ़िया है, नहीं हो रहा है तो 21 इंस्टॉल कर लो। चलो ओके ओके ठीक है। वेलकम। Okay, can we wrap up for today's session then? If you don't have any doubts. ओके मैम। Pooja, any questions? Okay, then we are wrapping up, guys. Have a great day and we are meeting again tomorrow. Okay? Message आ जाएगा आपको सेशन के लिए, so don't hesitate. हम मिलेंगे जल्दी. Take care. Bye bye.